Bismillahirrahmanirrahim. Today, from Adrian Rich, we are going to discuss Jabril. This is a poem, Jabril, by Adrian Rich. What the views I'll discuss, what the views I'll deliver, that would be just explanation of this poem, because the topic is sensitive, and these are not my own views. Just these are explanation of the poem. What is the possible explanation? I'll do it. Jibril. That is the same character which is present in Bible. That is the same character, same angel who brought revelations toward Christ and other prophets. That is the same character, Jibril. It's the angel. Okay, now first reading. There are no angels yet. Here comes an angel one with a man's face young, shut off the dark side of the moon. Shut off the dark side of the moon, turning to me and saying, I'm the plumed serpent, the beast, with fangs of fur and gentle heart. But he doesn't say that his message drenches his body. He would he had he would want to kill me for using words to name him. I sit in the bird apartment reading. Words stream past me. Poetry, 20th century rivers, disturbed surfaces, reflecting clouds, reflecting wrinkled neon, but closed and mostly nothing alive left. In their depths, the angel is barely speaking to me once in a bound of light. He stood or someone like him. Salutations and gold leaf are ebbing from his lips. Today again the hair steams to his shoulders. The eyes reflect something like a lost country or so I think, but the ribbon has reeled itself up. He isn't giving or taking any shit. We glance miserably across the room at each other. It's true, there are moments closer and closer together when words stick in my throat. The ode of love, the ode of words. I get your message, Gabriel. Just will you stay looking straight at me a while longer? In this poem, the poetess says that once she was studying a book, she was writing a poetry, she was in her room. Then Gabriel came over there. He stood in front of her and he spoke something. She understand this thing. And these were not the worthy words now. ये कोई बहुत काबिल किस्म के अल्फाज नहीं थे, बड़े अच्छे अल्फाज नहीं थे. मैं उनके लफ्जों से बिल्कुल इम्प्रेस नहीं हूँ. मैं जेब्रल के लफ्जों से बिल्कुल इम्प्रेस नहीं हुई. और फिर हमने एक दूसरे को देखा और फिर उसके लफ्ज जितने भी थे वो रिबन्स की तरह थे, आर्टिफिशियल थे, और वो चला गया. और फिर हम कुछ देर के लिए एक दूसरे को देखते रहे. दैट इज द पोएम एक्चुअली. नाउ पोएटिस आल्सो वांट्स टू से दिस थिंग. पास्ट में जब जैब्रिल आया था, जिसके पास आया था, और जैब्रिल जिसका मैसेज लेकर आया था, और जो मैसेज मुझ तक पहुंचा था एज अ वैमन, मैं उससे बहुत इन्फ्लुएंस्ड हुई थी पास्ट में. पोएट इज द सिंबल ऑफ वैमन. कि वैमन के पास जैब्रिल जो मैसेज वैमन के लिए छोड़कर गया था, और वैमन को जब रिसीव्ड हुआ कि गॉड ने ये मैसेज दिया है, उस वक्त वैमन बहुत इम्प्रेस हुई थी पास्ट में. बट इन 20th सेंचुरी वो वर्ड तो सो गए. आज की ट्रेडिशन, आज की 21st सेंचुरी के अंदर वो वर्ड तो रहे ही नहीं है, उनकी तो वर्थ ही कोई नहीं है. लेकिन अगर जैब्रिल दोबारा खुद चलकर आ भी जाए और वैमन को आकर कहे कि यस दैट इज अ कमांड ऑफ गॉड, देवता की ये कमांड है तुम्हारे लिए, तो कहती है कि उसके अल्फाज जो हैं मुझे बिल्कुल इंप्रेस नहीं कर रहे, बिल्कुल इंप्रेस नहीं कर रहे, क्योंकि वो कुछ कहता है जो वो आर्टिफिशियल है, वो नकली है, वो झूठ है. क्लियर? इट्स मीन दैट शी वांट टू से दैट जो मैसेज उसके लिए आए थे, पहुंचाए गए थे, वो मैसेज ठीक नहीं.
यानी कि कहना चाहती है कि रिलीजन के अंदर जो चीजें वैमन के लिए रखी गई हैं, these all were artificial, wrong, adaptive and fake. सॉरी, गलत है. सिंपल मीनिंग. Is it clear? Okay. Next. This Jabril is the symbol of a lover. ये एक लवर का सिंबल है. क्लियर? और तीसरा सिंबल है ये मैन का सिंबल है. चौथा सिंबल है ये एक पॉलिटिशियन का. क्लियर? जब ये लवर का सिंबल है तो कहती है कि लवर जब फर्स्ट टाइम शुरू में पास्ट में आता था और अपनी मोहब्बत का इजहार करता था तो वैमन इंप्रेस हो जाती थी, लेकिन अब वैमन लवर की आर्टिफिशियलिटी को, उसकी हिपोक्रेसी को अंडरस्टैंड कर चुकी है. नाउ उसके अल्फाज उसको इंप्रेस इसलिए नहीं करते क्योंकि उसके अंदर ट्रू लव है ही नहीं, या वो लव जो है वो खुद अपना एतमाद, ट्रस्ट खो चुका है. पहले जब आया था उसने मोहब्बत की बात की थी, लेकिन वो वक्त गुजरने के साथ साथ उस चीज को प्रूव नहीं कर सका. If the lover is saying that you are the queen, you are the best one, you are excellent, you are very beautiful, you are very intelligent, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ क्या उसने प्रूव किया? उसे प्रूव तो नहीं किया. उसने उसको अच्छा भी कहा, खूबसूरत भी कहा, फॉर अ टाइम बीइंग कहा. उसके बाद उसको काम क्या दिया? उसने अपने असिस्टेंस का काम दिया, उसको सेकेंडरी उसको स्टेटस दिया है. तो लवर ने उसके साथ जस्टिस नहीं किया. जस्टिस नहीं किया. इसलिए अब लवर जब दोबारा, अब वैमन ने जब मैन को शन कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, छोड़ दिया है, मैन दोबारा, लवर दोबारा आया है रिकाउंसिल के लिए. ये पोएम के अंदर होगा सब कुछ. रिकाउंसिल के लिए आया है. जब दोबारा वो अगर कह रहा है कि आई लव यू और मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, तो कहते हैं ये चीज मुझे अपील नहीं करती. अब तुम्हारी, वो कहते जैब्रिल, तुम्हारी ये अल्फाज मुझे अपील नहीं कर रहे. लवर को उसने कहा है कि ये लवर मुकद्दस तरीन फरिश्ते की तरह है, और मुझे अगर दोबारा कह रहा है, पहले ये प्रूव हो चुका है फेक, गलत, मुझे इसे सेकेंडरी कंडीशन दी है. दोबारा जब आया रिकाउंसिल करने के लिए, मैं उसे देख रही हूँ और उसके अल्फाज अब जो हैं कि तुम बहुत प्यारी हो, तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हारे साथ रिकाउंसिल करना चाहता हूँ, रहना चाहता हूँ, क्योंकि अब मुझे इंप्रेस नहीं करते अल्फाज. लवर और बिलवर्ड का ये डायलॉग भी हो सकता है पूरी पूरी. और उसने लवर को क्या कंसीडर किया है? जैब्रिल. और जैब्रिल कंसीडर किया है तो जैब्रिल इज फेक नाउ. वैसे तो ये बड़ा मुकद्दस है, लेकिन ये तो फेक है, प्रूव हो चुका है ये फेक है. और अगर रिलीजियस कंसेप्ट में देखें, तो बिब्लिकल कंसेप्ट में देखें, तो क्रिश्चियनिटी के हवाले से देखें, तो तब भी हमें महसूस होता है कि जैब्रिल जो आया है उसने वैमन के हक में कोई बात नहीं की. उसने जो कमांड आकर दी है वो वैमन के खिलाफ हो गई है. वैमन तो सेकेंडरी चली गई है, उसको पावर तो नहीं मिली, ताकत तो नहीं मिली, उसको तो पूरी सांस लेने की इजाजत नहीं मिली. मैन के बराबर पावर हो जाती, इक्वालिटी हो जाती. नहीं जी. तो ये लवर की. तीसरी मैन का सिंबल है कि तमाम दुनिया के मैन जो हैं वो ये डिनोट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, कहते हैं कि वी हैव गुड फीलिंग्स फॉर यू, और हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, बट दे कांट डू दिस थिंग, दे हैव नेवर डन दिस थिंग. अगेन एंड अगेन दे आर सेइंग, बट दीज आर जस्ट कोट्स, इम्प्रैक्टिकल थिंग्स. तो ये मैन जो हैं ये वैमन को दोबारा काउंसिल करने आए कि वैमन तुम हमारा हिस्सा हो, हमारे साथ हो, हम तुम्हें साथ लेकर चलेंगे, बट दे आर नॉट डूइंग सो. अब मैन के अल्फाज पोएट्स को इंप्रेस ही नहीं कर रहे. तो पहली लेयर क्या थी? एक लेयर में हमने रिलीजियस का कंसेप्ट देखा, जैब्रिल आया है और वो रिलीजियस दोबारा मैसेज लेकर आया और पोएट्स के बाद खुद आ गया है, लेकिन पोएट्स कहती है कि मुझे उसके आइडियाज ने बिल्कुल इंप्रेस नहीं किया. एक बात. दूसरा लवर दोबारा रिकाउंसिल करने आया है जबकि वो रॉन्ग प्रूव हो चुका है, लेकिन राइटर को अब उसकी बातों पर यकीन नहीं है और कहती है मुझे बिल्कुल. अब उसने ये नहीं कहा कि मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं है, वो कहती है कि मुझे उसके अल्फाज बिल्कुल इंप्रेस नहीं कर रहे. तो मैन वो भी हमेशा कहते हैं कि वैमन के हम फेवर में हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी फेवर नहीं. देन आफ्टर दिस पॉलिटिशियन, सियासतदान, तमाम सियासतदान कहते रहते हैं कि हम जो है वैमन को इस दफा आज़ादी देंगे, वैमन को ये राइट्स देंगे, वो राइट्स देंगे. ये भी फेक हैं, ये भी गलत है. क्लियर? लेट्स सी. देयर आर नो एंजल्स येट,
गो के अब एंजल नहीं आते। Here comes an angel one. हाँ, यहाँ पर एक बार एंजल आया। With a man's face young. उसका चेहरा आदमी की तरह था, यंग मैन की तरह था। अब ये दोनों लेयर्स आ गई, मैन की लेयर भी आ गई, लवर की भी आ गई, पॉलिटिशियन की भी आ गई, जैब्रिल की भी आ गई, तीनों चीजें आ गई। शट ऑफ द डार्क साइड ऑफ द मून। ये एंजल है ना, चांद की तरह चमकता हुआ चेहरा होगा, लेकिन इसने शट ऑफ द डार्क साइड ऑफ द मून, लेकिन ये चांद सामने से चमकता हुआ है लेकिन पीछे से काला स्याह है। चांद सामने से चमकता है ना, उसका पिछली साइड जो होती है, बैक साइड, वो जो डार्क होती है। तो ये जो जैब्रिल है सामने से तो खूबसूरत नजर आता है, बड़ा प्यारा लगता है कि वाकई ये फरिश्ता है, लेकिन पीछे इसने शट ऑफ द डार्क साइड ऑफ मून, लेकिन पीछे इसने अपनी तारीख सारी चीजें पीछे छुपाई हुई है। जो उसने औरतों को देनी है, हिपोक्रेसी है, वो डबल फेस है उसका, ठीक है। इसी तरह अगर वो लवर है तो उसने अपने अंदर की हिपोक्रेसी, अपने अंदर के इवल पैशन सारे के सारे पीछे छुपाए हुए हैं, सामने फेस ब्राइट रखा हुआ है। पॉलिटिशियन है तो उसने भी, और मैन है तो उसने भी। शट ऑफ द डार्क साइड ऑफ द मून टर्निंग टू मी, और मेरी तरफ उसने चेहरा किया, यानी कि पहले उसका डार्क साइड भी पोएटिस देख रही थी, वो इस तरह था, आपके चेहरे के सामने इस तरह था। जब उसने शट ऑफ द डार्क साइड ऑफ द मून, चांद का डार्क साइड पीछे चला गया और उसने सामने लेकर आए, तो पोएटिस ने बता दिया कि आई एम अबाउट द डार्क साइड टू। उसने अब चेहरा मेरी तरफ किया है, ब्राइट वाला। तो ये लवर है जो सामने आकर ठहरा है सपोज, और इसने डार्क साइड जो है मून की वो छुपा ली है। टर्निंग टू मी, मेरी तरफ आते हुए, एंड सेइंग, और मुझे कहता है, आई एम द प्लम्ड, मैं अथॉरिटी हूँ, कलगी वाला हूँ, मेरे सर पर तुर्रा है, मैं वो शान वाला आदमी हूँ, ताज वाला आदमी हूँ। सरपेंट द बीस्ट, और ये सॉफ्ट है अपीयरेंस में, प्लम्ड है, सॉफ्ट है अपीयरेंस में, सरपेंट द बीस्ट, बट एक्चुअली ही इज अ बीस्ट, ही इज अ सरपेंट। ये एक क्रूअल है, ये एक जालिम है, ये एक जहरीला शख्स है। विद फैंग्स ऑफ फायर, और इसके अंदर जो दांत हैं, आग वाले दांत हैं इसके, जिस तरह के, कौन सा होता है उसे क्या कहते हैं, एक होता है ना, अज़्ज़ा कहते हैं, नहीं, जिस जो ड्रैगन, ड्रैगन की तरह इसके जहर जो है वो आग वाला जहर वाला इसके मुंह में दांत है। एंड अ जेंटल हार्ट, लेकिन हार्ट इसका जेंटल है, नेचर वाइज जहरीला है। वैमन के साथ क्या करता है लवर, जहर ही भरता है, प्रेग्नेंट करता है उसे, उसकी चेस्टिटी खत्म कर देता है, उसको हिमुलेशन का एहसास दिलाता है, तजलील उसे देता है, उसको पैसिव करता है। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये क्रूरल्टी की निशानी है, इसके अंदर ये उसकी फितरत है। एंड द सेम इज द केस नाउ विद इन द रिलीजियस कंटेक्स्ट। अगर ये जैब्रिल है तो रिलीजियस कंटेक्स्ट में भी आप सेम चीजें देखेंगे इसकी। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को माफ करे। but he doesn't say that his message drenches his body. लेकिन अब उसने ये नहीं कहा कि उसका पैगाम उसके जिस्म को ड्रेंच कर देगा। किसके जिस्म को ड्रेंच कर देगा, हिज लिखा हुआ है। अब उसे पहले जब भी जैब्रिल आता था तो सुनने वाला होता था, उसका बदन भीग जाता था पसीने में, ठीक है। तो इस दफा उसने ये नहीं कहा कि मैं ऐसा मैसेज देने वाला हूं, हिज मैसेज, हिज वो या खुद है या वो पीछे देवता है, उसका मैसेज जो मैं देने वाला हूं वो हिज बॉडी ड्रेंच कर देगा। हिज कौन है, या तो हिज वो खुद है, लेकिन खुद तो नहीं हो सकता, फिर ये हिज पोएट हो सकता है, और पोएट फिर पोएटिस हर कहता, हर इसलिए आई एम ही, आई एम शी, ठीक है, नहीं रखा। अब वो वैमेन की स्टेट पर है ही नहीं,
वैमेन के स्टेटस पर होती तो कहते कि हर, जब उसको इन्फ्लुएंस ही नहीं कर रहे वो अल्फाज, इट्स मीन दैट कि लवर के अल्फाज जब इन्फ्लुएंस ही नहीं कर रहे तो इट्स मीन दैट शी इज नॉट इन द स्टेटस ऑफ वैमेन, शी इज एट द सेम टाइम वैमेन, शी इज एट द सेम टाइम मैन, आई एम ही, आई एम शी। तो उसने ऐसा कुछ नहीं कहा मुझे कि मैं अब अल्फाज को ऐसे कहने वाला हूं मैसेज जिसे तुम्हारा जिस्म भीग जाएगा। इट्स मीन दैट शी वांट टू से दैट जैब्रिल 21st सेंचुरी में भी आता है, आ सकता है, लेकिन 21st सेंचुरी का करेक्टर इतना स्ट्रांग है, मजबूत है कि अब वो ड्रिंच नहीं होता, हॉली ड्रेड उसके अंदर नहीं है। अब वो एनालाइज करता है, तजिया करता है, क्या कहना है भाई कहो। ठीक है, तो लड़की कह रही थी मुझसे, गर्ल्स अब आपकी आवाज नहीं आनी चाहिए, फॉर गॉड सेक। A girl was saying to me that मुझे जिन नजर आया है और जिन मेरे पीछे है तो मैं बड़ी डरती हूँ, खौफजदा होती हूँ। मैंने कहा डरने की क्या बात है, जिन नजर आ गया ये तो खुशी की बात है। मुझे जिन नजर आ गया, मैं कहूँ यार जिन, मैं तो तुझे तलाश कर रहा था, चल न्यूयॉर्क चलें, चल चांद पर चलें। उसे कहेंगे यार मैं तो खुद तुझे तलाश कर रहा था, डरना क्या है उससे। पोएटिस कहती है, वो कहती है अब मुझे बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं हुआ, मैं अब ड्रिंच नहीं होंगी, क्योंकि 21st सेंचुरी की वैमेन है, 20th सेंचुरी की वैमेन। he would want to kill me for using words to name him, वो मुझे मार डालेगा अगर मैं कोई लफ्ज उसको देती हूँ, कोई नाम उसे देती हूँ। मे बी पोएटिस ये कहती है अगर मैं कह देती हूँ कि ये जैब्रिल मैन है तो मैन जो है वैमेन को फिर दोबारा किल करेगा, मारेगा, उसको तंग करेगा। मे बी ये कहना चाहती है, या वो ये कहना चाहती है कि उसने he would not to kill me, he would want to kill me for using words to name him, अगर मैं उसका नेम लेती हूँ तो वो मुझे शायद मार डाले, वो साथ ये भी कहती है। तो दोनों चीजें उन्हें एलिमेंट रखे हैं। पहले उसने कहा 21st सेंचुरी की जो वैमेन है वो ड्रेंच नहीं होगी, हॉली डेड में नहीं आएगी, और दूसरी बात उसने कही है, उसने कही है मुझे मार भी सकता है। अब वो लवर है या वो मैन है या वो पॉलिटिशियन है या वो जैब्रिल है। आई सिट इन द अपार्टमेंट, अपने कमरे में बैठी हूँ, घर में बैठी हूँ, रीडिंग वर्ड स्ट्रीम पास्ट मी पोएट्री, और मेरे जो मेमोरी के अंदर जो है पोएट्री वो मूव कर रही है, स्ट्रीम कर रही है, चल रही है। 20th सेंचुरी रिवर्स, मेरे पास जो सेंसेस हैं वो 20वीं सदी के हैं। डिस्टर्ब सर्फेसेस रिफ्लेक्टिंग क्लाउड्स, और मेरे दिमाग के स्ट्रीम के अंदर मुख्तलिफ किस्म के क्लाउड्स उभर रहे हैं, आइडियाज उभर रहे हैं। रिफ्लेक्टिंग रेंकल्ड न्योन थेरीज, और मेरे जहन में कई किस्म की थेरीज हैं। बट क्लोज्ड लेकिन स्टॉप्ड, एंड मोस्टली नथिंग अलाइव लेफ्ट, लेकिन ये थेरीज ज्यादातर जिंदा नहीं रही। नथिंग अलाइव लेफ्ट तक का मतलब ये बनता है ये जो थेरीज पिछले दौर में चलती आई हैं, ट्रेडिशंस, नजरियात, मॉरल्स, बिब्लिकल जो आइडियोलॉजी है, वो ये तमाम चीजें मेरे जहन में उभरती हैं, लेकिन अब इनकी कोई वुकत नहीं है, वैल्यू नहीं इन देयर डेप्थ्स, और ना ही इनके अंदर कोई एक्चुअलिटी है, कोई गहराई है इसके अंदर। क्लियर? तो अगर बहुत सारे मॉरल ऐसे हैं, क्या आपको लगता है कि ऐसे बहुत सारे बाइबल के अंदर मॉरल होंगे जो इस वक्त अप्लाई नहीं हो सकते? ऐसे मॉरल बहुत सारे होंगे जो अब अप्लाई नहीं हो सकते। वैसे वो चेंज कर लेते हैं बाइबल अपने वक्त के साथ साथ वो चेंज कर लेते हैं। कि तो लोग कहते हैं कि चेंज कर लेते हैं, पता है चेंज किए कि नहीं की पता नहीं, हो सकता है फ्यूचर के अंदर वो कहें कि सबसे अच्छे वही हैं बाइबल वाले जिन्होंने तब्दीलियां लाते रहे हैं वक्त के साथ साथ। अगर बाइबल के अंदर यार तमाम जितने बाइबल के अंदर बहुत सारी चीजें अब वो ऐसी लेकर आए, उन्होंने कहा जी ये जो बात की गई थी ना, इसका मतलब ये था कि माँ के पेट में जो बच्चा होता है इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। आसमान की साइंटिफिक नई थ्योरी आई, उन्होंने कहा जी ये बाइबल में मौजूद है। ये तो बहुत से लोग अब कहते हैं भाई ये बात तो बाइबल में मौजूद है, जो चीज आप साइंस प्रूव कर रही है।
तो कल को बाइबल के अंदर से वो कहेंगे जी कंप्यूटर का लफ्ज भी मौजूद है। वहां पर लिखा हो कि हाँ जी फ्यूचर के अंदर एक चीज ऐसी इजाद होगी जिसका नाम होगा दजाल। सपोज टीवी बना दिया है, दजाल है, काना है, एक आंख है, ठीक है। क्या करता है, माजी के सारी बातें बताता है, आपके माँ बाप को दिखाएगा, चलता फिरता दिखाएगा सामने, नमाज पढ़ने नहीं जाने देगा, कहेगा आओ इधर आओ, चर्च में ना जाओ इधर आओ। तो काना दजाल, वो कहेंगे ये कंप्यूटर ही तो है, ये स्क्रीन ही तो है काना दजाल। फ्यूचर दिखाएगा तो काना दजाल यही है, वो कहेंगे। तो फिर हो सकता है हम कहें यार ये बेहतर है, ये अच्छा हुआ इन्होंने तब्दील करते गए हैं थोड़ा थोड़ा, तो इन्होंने तब्दील नहीं किया, वो गुम हो जाएंगे। भाई मुझे एक बात बताएं, आपके पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा मसला है, कौन सा मसला है? वो ये जो कंप्यूटर के ऊपर जो करप्शन होती है, कंप्यूटर के जरिए लोगों को जो लूटा जाता है, इसका कोई रूल नहीं है आपके पास, पता है आपको? ये एक प्रॉब्लम है जो कभी कभी यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। भाई ये जो कंप्यूटर के जरिए लोग पैसे हथिया रहे हैं, लूट रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, लड़कियों को सब दोस्तियां कर रहे हैं, इसका कोई ना कोई मॉरल होना चाहिए, कोई ना कोई लॉ होना चाहिए, और लॉ इनसे बनता नहीं है। उन्होंने कहा साढ़े तो वही लॉ है जो बना के बैठे हैं। अब बाइबल वाले ये कहें जी हमारे तो यही बाइबल है, इसके अंदर कंप्यूटर वाला तो लॉ हमारे पास नहीं है, तो क्या होगा? वो तबका थोड़ा होता जाएगा, उसको मानने वाले थोड़े होते जाएंगे, क्योंकि ज्यादा तो आगे कमाने वाले चक्कर में चले गए हैं, मॉडर्निटी के अंदर चले गए हैं। उनको तो वो लॉज अच्छे लगेंगे ना जहां पर सिक्योरिटी होगी। मैं चला जाता हूं अफगानिस्तान में, या मैं चला जाता हूं रशिया के अंदर, जहां पर ये मॉरल ही नहीं है कि जी कंप्यूटर पर कोई आपको लूट ले तो आप कोई कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। कोई लॉ नहीं, हमें नहीं पता ये क्या होता है कंप्यूटर, पुलिस वालों को क्या पता कंप्यूटर क्या होता है, इसमें क्या चीजें होती है, वो लटरेट थोड़ी बैठा है। तो मुझे वहां सिक्योरिटी नहीं है, मैं तो रशिया में नहीं रहूंगा। बेशक अमेरिका के अंदर ये रूल बना हुआ हो कि हाँ जी वो बाइबल में बेशक नहीं है, चर्च में बेशक नहीं है, लेकिन रूल बना हुआ कि जी आपके साथ कोई धोखा करेगा तो हम जिम्मेदार हैं, तो मैं तो वहां रहना पसंद करूंगा। दुनिया सारी इस तरफ हो जाएगी, वो लोग तो नथिंग इज कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट चेंज, तब्दीली कांस्टेंट है। पॉइंट इज दैट आपके माशरे के नौजवान देखें, लोग देखें, रिलीजन से दूर होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे जब वहां जाते हैं वो कहते हैं हमारी बात तो की ही नहीं जा रही। 18 साल का 19 साल के बच्चे की बात ही नहीं की जा रही। सुबह सुबह दुआ कराते हैं, मैं योगा कराता हूँ, योगा के बाद जब दुआ होती है तो मैं उनसे कहा है, रिक्वेस्ट की है, मैं कि मेहरबानी करें आप अपनी दुआ में ये दुआ शामिल करें कि या अल्लाह जितने लोग कंप्यूटर पर बैठकर काम करते हैं उनको हिदायत दे कि वो सिर्फ काम करें। आज तक दुआ में ये लफ्ज क्यों नहीं आया कंप्यूटर का? या अल्लाह हमें कोई अच्छी यहाँ पर मशीनरी अता फरमा जिससे हमारे बुजुर्गों की सेहत को बेहतर तरीके से ठीक किया जा सके, अच्छे अल्ट्रासाउंड वाली मशीन हो यहाँ पर। ये दुआ आपको करनी पड़ेगी। अगर आप दुआ नहीं करेंगे तो लोग तो आपके पास आएंगे नहीं, लोग तो वहां जाएंगे जहां पर उनके मकसद की, उनके हवाले से बात की जाएगी कि नहीं। ये पॉइंट्स ओके, आगे चलते हैं। इन फिलॉसफीज में डेप्थ नहीं रही। किन फिलॉसफीज में? रिलीजियस फिलॉसफीज में या दूसरी थेरीज के अंदर या पुरानी ट्रेडिशनल थेरीज के अंदर कोई जान नहीं है। द एंजल इज बारली स्पीकिंग टू मी, और एंजल दो टोक मुझसे बात कर रहा था। वंस इन अ हॉर्न ऑफ लाइट, पूरे पैशंस के साथ। हॉर्न का मतलब होता है बाल, रुएं, सींग। तो वो रोशनी के अंदर ठहर कर मुझसे बात कर रहा था। He stood or someone like him, वो ऐसे ठहरा हुआ था जैसे कोई एक सैल्यूटेशंस शोखे अंदाज में, इन गोल्ड लीफ, जैसे प्रीशियस लिबास पहनकर कोई ठहरा हुआ हो। रिबनिंग फ्रॉम हिज लिप्स, और अपने लिप्स से वो रिबनिंग कर रहा था। पहले जो थे लवर वो अपने मुंह से बातें कहते थे, वो पैशनेट बातें होती थी, बाहर आती थी। अब जब वो बोला है तो उसके मुंह से क्या रिबन्स बाहर निकल रहे हैं, नीले पीले सुर्ख रिबन्स बाहर निकल रहे हैं। तो एक तो ओरिजिनल फूल होता है, एक आर्टिफिशियल फूल होता है। अब ये रिबनिंग निकल तो रही है जैब्रिल के मुंह से,
लेकिन अंदाजा है कि दीज आर रिबनिंग, आर्टिफिशियल चीजें जो कह रहा है ये लवर है तो वो भी आर्टिफिशियल चीजें कह रहा है, आर्टिफिशियल कह रहा है, पॉलिटिशियन है तो वो भी आर्टिफिशियल चीजें कह रहा है। तो रिबनिंग और फ्रॉम हिज लिप्स का मतलब क्लियर हो गया कि आर्टिफिशियल थिंग्स जो कह रहा है। टुडे अगेन द हेयर स्ट्रीम्स, आज फिर हेयर स्ट्रीम्स, फिर अलुजन्स, धोखे वाली बातें, टू हिज शोल्डर्स, और उसके शोल्डर्स पर, और उसकी डिटर्मिनेशन के साथ, उसने डिटर्मिनेशन के साथ फिर मुझसे झूठ बोला। सिंपल। आईज रिफ्लेक्ट समथिंग, आंखों से कोई चीज वाजी होती है। लाइक अ लॉस्ट कंट्री, ऐसे जैसे उसने किसी कंट्री को खो दिया हो, जैसे कि उसने अपनी माँ को खो दिया हो, जैसे कि उसने अपने बिलवेड को खो दिया हो, जैसे कि उसने वैमन को खो दिया हो। Also I think what the ribbon has reeled itself up, लेकिन रिबन जो हैं वो itself up, वो खुद ब खुद ही खत्म हो गए। रील्ड itself up, अब वो खुद ब खुद ही रिबन्स बंद हो गए, बाहर आना और खत्म हो गए। मीन्स दैट कि वो वर्ड इफेक्टिव बिल्कुल नहीं थे, इसीलिए खुद ही खमोशन। जब आपके अल्फाज खोखले हों, इफेक्टिव ही ना हो, तो आप बात करते हैं, कैसी बात करते हैं? दो बातें करने के बाद चुप हो जाते हैं। जब दूसरे को पता होता है कि आप अनफेथफुल हैं, आप सिंसियर नहीं हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप फिर भी लव जताने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? आपके अल्फाज खत्म हो जाएंगे। He isn't giving or taking any shit, ना ये कोई शिट ले रहा है, ना ये कोई शिट दे रहा है। शिट का मतलब समझते हैं ना? गंध। We glance miserably, हमने एक दूसरे को बड़े दुखी अंदाज में देखा। मैं इसलिए दुखी थी कि जो वादे इसने किए वो पूरे नहीं कर सका, वो इसलिए दुखी था कि वो मुझे खो चुका था। अक्रॉस द रूम एट ईच अदर, हमने रूम में ठहर कर एक दूसरे को देखा। व्हाट अ सिचुएशन इज ओवर देयर, वाकई ये लवर की सिचुएशन नजर नहीं आती। लवर और बिलवेड जैसे रिकाउंसिल करने के लिए आते हैं तो बात नहीं कर पाते, हर चीज अंडरस्टूड हो जाती है। तो इसी तरह जैब्रिल को भी देखिए, अब वो कहने को चाहता है तो वो बात है क्योंकि पिछले सदियों से प्रूव नहीं हुई, वेमेन को वो स्टेटस मिला नहीं है। वेमेन डिग्रेड हो गई है, फिजिकली वीक हो गई है, ज़हनी तौर पर वीक हो गई है, घरों के अंदर बंद हो गई है। तो अब वो जैब्रिल कुछ भी कहे तो वो उसको अपील नहीं करते। इट्स ट्रू देयर आर मोमेंट्स क्लोजर एंड क्लोजर टुगेदर, इट्स ट्रू देयर आर मोमेंट्स, हाँ कुछ लम्हे हैं करीब से करीब तर रहने के। व्हेन वर्ड्स स्टिक इन माय थ्रोट, लेकिन अल्फाज मेरे गले के अंदर फंस कर रह गए। द आर्ट ऑफ लव, मोहब्बत को एक्सप्लेन करने का आर्ट, मोहब्बत के इजहार का आर्ट। द आर्ट ऑफ वर्ड्स, लफ्जों का आर्ट, यानी कि सारे हथकंडे दूर रह गए। ना उसके पास अल्फाज हैं, ना मेरे पास अल्फाज हैं। अल्फाज हैं तो उनके अंदर पैशंस नहीं है, उसके अंदर एंथुसियाज्म नहीं है, जज्बात नहीं है उसके अंदर। अगर लव है तो लव भी एक्सप्रेस करने के लिए अब अल्फाज नहीं है, वो लव है ही नहीं। आर्ट ऑफ लव भी नहीं है, आर्ट ऑफ वर्ड्स भी खत्म हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। आई गेट योर मैसेज जैब्रिल, जैब्रिल मैंने तुम्हारा पैगाम पा लिया है। जस्ट विल यू स्टे लुकिंग स्ट्रेट एट मी अ व्हाइल लॉन्गर, क्या तुम ठहरोगे यहाँ पर सिर्फ मुझे देखने के लिए कुछ देर? यानी कि योर फंक्शन इज ओवर नाउ, फॉर देयर इज नो रिकाउंसलिंग। तुम लम्हा भर के लिए ठहर कर मुझे देखना चाहोगे? सो एट द एंड देयर इज सम होप। टोटली उसने रिजेक्ट नहीं कर, बट शी सेइंग कि मैं अब इम्प्रेस नहीं हूं। अब किसी को इम्प्रेस करने के लिए जब आपकी सारी क्वालिटी सामने आ जाए, आप किसी के साथ धोखा भी कर लें, उसके बाद दोबारा आप उसको, वो आपको कह दे कि यार आपके अल्फाज में मुझे तो कोई ताकत नजर नहीं आती, मुझे नहीं लगता कि आप इतने काबिल हैं, आप खामोश हो जाएं, तो उस शख्स को बहुत तगुदाव करनी पड़ेगी आपको दोबारा इम्प्रेस करने के लिए। तो पोइम बहुत कद्दावर पोइम है अपने कहने में, और तमाम आइडिया जो थे ये क्रिश्चियन बिब्लिकल जो सिनेरियोज हैं उसमें हमने डिस्कस किए हैं। These are not our own concept. We are not agree with these concepts, especially about the religious concepts. Nice of you.